kilogram per meter square, attends the emergency department, the shortness of breath, edema and tachycardia. कोई proteinuria नहीं है, but admits have a family history of hypertrophic cardiomyopathy. It becomes apparent that she is hypertensive है, and needs a treatment prior to investigation. So कौन सा जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव है वो भी appropriate. As हमने जो है पढ़ा था समरी में, गाइडलाइन समरी में, उसमें था कि फर्स्ट लाइन हमेशा जो है वो लेविट्रिनॉल है, एंड सेकंड लाइन इज नेफेडिपिन, एंड थर्ड लाइन जो है हमारे पास मेथानडोपा है, बिकॉज मेथानडोपा जो है इट विल टेक टाइम टू डू इट्स एक्शन, एंड नेफेडिपिन जो है वो वेरिडाइलेटेशन करता है. तो फर्स्ट लाइन हमारे पास हमेशा क्या है, लेविट्रिनॉल. सेम एक दूसरा क्वेश्चन था, इट्स आल्सो रिलेटेड टू हाइपरटेंशन. Question number 9. A 39-year-old Pammi Devda, a 39-year-old woman presents the right upper quadrant pain and polydipsia in a third pregnancy. दोनों बहुत ही important symptoms हैं. एक right upper quadrant pain, दूसरा polydipsia, वो भी third trimester में. And she has jaundice and tells you that she has been vomiting for 2 days. तीनों जो है बहुत important symptoms हैं. And on examination BMI इसका 35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है. ब्लड टेस्ट जो है वो रेज्ड. BMI of 38 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. Attends the emergency department, the shortness of breath, edema and tachycardia. कोई proteinuria नहीं है, but admits have a family history of hypertrophic cardiomyopathy. It becomes apparent that she is hypertensive है, and needs a treatment prior to investigation. So कौन सा जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव है वो भी appropriate. As हमने जो है पढ़ा था समरी में, गाइडलाइन समरी में, उसमें था कि फर्स्ट लाइन हमेशा जो है वो लेविट्रिनॉल है, एंड सेकंड लाइन इज नेफेडिपिन, एंड थर्ड लाइन जो है हमारे पास मेथानडोपा है, बिकॉज मेथानडोपा जो है इट विल टेक टाइम टू डू इट्स एक्शन, एंड नेफेडिपिन जो है वो वेरिडाइलेटेशन. अच्छा, तो ये ब्रेन एमसीक्यू है. इसका क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ मैटरनल मेडिसिन ये है कि यू आर आस्क्ड टू सी अ 28-year-old woman who is day 2 following a C-section for unsuccessful induction of labor at 37 weeks of gestation. She was diagnosed with mild preeclampsia at 36 weeks gestation. Her blood pressure has been 155 by 100 mmHg on 2 occasions. Today, although asymptomatic and her deep tendon reflexes are normal, she is breastfeeding. You decide to start her on an antihypertensive agent. Which of the following antihypertensive agents has insufficient evidence on infant safety to recommend for use in breastfeeding mothers? सो हेयर आंसर इज ऑप्शन हमारे पास एम्लोडिपिन है, एटिनोलॉल, कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, मेटोप्रोलॉल. सो यू कैन गिव पेशेंट एटिनोलॉल if she is breastfeeding. You can give enalapril, captopril, although not safe in pregnancy, but in breastfeeding a very less amount is passed to the breastfeeding infant, and the metoprolol. So here the answer is A, amlodipine. Here it is said that Atenolol, captopril, enalapril and metoprolol are antihypertensive agents with no known adverse effect on infant breastfeeding mothers. Now come to question number 71. This. You see a 31-year-old primary gravida, 37 weeks, who present to your day assessment unit with headache and blurring of vision. Her BP is 160 by 110. Okay. She is eclamptic, preeclamptic, and uterine dipstick showing 3+ protein. Reflexes are brisk with 4 beats of ankle clonus. Her abdomen is soft. ठीक है. अभी तक तो प्रीक्लेम्शिया ही चल रहा है. The symphysis fundal height is 35 cm. She is 37 weeks, but her symphysis fundal height is 5 cm and the CTD is normal and her urine protein creatine ratio is 19 mg per millimole.
पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्लेम्सिया की तरफ जा रही है अगर हमने इसको प्रिवेंट नहीं किया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन? ऑप्शंस दिए हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टू 125 ml per hour with magnesium sulfate, infusion followed by delivery of the baby, 125 ml per hour with max sulfate infusion. ऑप्शन बी क्या है? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टू 125 ml per hour with magnesium sulfate infusion followed by hydrolysis and delivery of the baby. ऑप्शन सी क्या है? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टू 80 ml per hour with magnesium sulfate infusion followed by hydrolysis and delivery of the baby. ऑप्शन डी मैक्स सल्फेट इन्फ्यूजन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज़िन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब इसमें तो ई तो बिल्कुल नहीं है, इमीडिएट हम नहीं करेंगे। ए बी इस तरह है कि 125 ml तो ज़्यादा है, ये दोनों भी नहीं हुआ। एंड डी है मैक्स सल्फेट इन्फ्यूजन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज़िन, कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं दिया हुआ तो डी भी नहीं है। सी बच गया हमारे पास, सी इज द आंसर। ये क्या कह रहा है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टू 80 ml per hour विद मैक्स सल्फेट इन्फ्यूजन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज़िन। के बीपी बहुत ज़्यादा है तो हम मैक्स सल्फेट देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गिव हाइड्रोलाइज़िन एंड देन वी विल डिलीवर द बेबी। सो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इन वुमेन विद सिवियर प्रीक्लेम्सिया मेंटेनेंस फ्लूइड शुड बी लिमिटेड टू 80 ml per hour अनलेस अदर ऑनगोइंग फ्लूइड लॉसेस। अगर उसको कोई हैमरेज ना हो रहा हो, ब्लड लॉस ना हो रहा हो, तब हमने रिस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड को, फ्लूइड ओवरलोड नहीं देना हमने, पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में चली जाएगी। एंड बीपी को हमने मेंटेन करना है बिलो 150/80 टू 100 mf मर्करी। एंड मैक्स सल्फेट अगर जब हम देंगे तो वी हैव टू डिलीवर द बेबी विद इन 24 आवर्स। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है 81 पे आ जाते हैं। 81 है यू सी अ 34-year-old primary gravida at 32 weeks of gestation in your day assessment unit. She presents with a 2-day history of non-specific headache, nausea, retrobubble pain and blurring of vision. ठीक है, 2 day हिस्ट्री सिर्फ दे रही है। Although a neurological examination is normal, this is a retrobulbar pain and blurring of vision and ophthalmologic examination show bilateral papilledema. ठीक, MRV demonstrates no mass lesions or venous thrombosis. Lumbar puncture, however, shows a raised opening pressure greater than 250 millimeter of water with no other histological, cytological, chemical abnormalities. तो इसका आंसर ये बता रहे हैं कि द मोस्ट जो लाइकली डायग्नोसिस इसकी बन रही है वो इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। एंड उसके लिए जो है एसिटाजोलामाइड जो हम देंगे, एसिटाजोलामाइड। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन देख सो रेयर थिंग बट शुड बी नॉलेज। एस्टाजोलामाइड इसका आंसर है। और ये क्या करता है कि एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज जो कि CNS में होता है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ प्रेशर, उसको इनहिबिट करता है। एंड कैटेगरी सी ड्रग है तो रिस्क बेनिफिट रेशो दे के हमने पेशेंट को ये देना है। एंड इस वक्त ज़ाहिर है पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है एंड वी हैव टू गिव दैट ड्रग एस्टाजोलामाइड। अच्छा, तो ये SBA एंड्रयू सीजर है, इसका मॉड्यूल नंबर 9 ऑफ मैटरनल मेडिसिन। इसमें क्वेश्चन नंबर 131 है अ वुमेन विद क्रॉनिक एसेंशियल हाइपरटेंशन was converted from lisinopril to methyl-dopa in a pre-conception counseling clinic. The pregnancy was uncomplicated and she delivered spontaneously at term. At what stage postnatally should the antihypertensive medication be switched back to lisinopril? postnatally डे 2 पे ही हमने जो है स्विच बैक करना है। प्री कंसेप्शनली वो जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ले रही थी, कीपिंग इन माइंड कि उसमें फीटल सेफ्टी हो, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर इट विल ट्रांसफ़र टू द इन्फेंट। तो इसमें डे 2 आंसर है, आंसर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नाइस 107 हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी
If a woman has taken methyl-dopa to treat chronic hypertension during pregnancy, stop within 2 days of birth and restart the antihypertensive treatment the woman was taking before she planned the pregnancy. 131 day 2. फिर इसका क्वेश्चन नंबर है 143. 143 पे है a young priming gravida attends the assessment unit 32 weeks gestation following an assessment of raised blood pressure by the community midwife. Urine protein creatinine ratio 32 milligram per millimole and the blood pressure is 152 per 102 mm of mercury. Clear cut preeclampsia है. तो हमने क्या करना है, इस पेशेंट को वी हैव टू एडमिट. हमने इसको डिस्चार्ज नहीं करना, हमने इसको आउट पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करना, बट वी हैव टू एडमिट द पेशेंट बिकॉज इसका यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है एंड ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है. एनी टाइम 160 और 110 तक पहुंच सकता है ये. वी हैव टू एडमिट द पेशेंट एंड कमेंस एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट. इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस नहीं हैं. क्यों नहीं है कि एडमिट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड 6 आवर्ली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड डेली प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो. तो इसको सिर्फ हम एडमिट कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने कोई एक्शन नहीं लिया इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं है. एडमिट फॉर ऑब्जर्वेशन भी नहीं है. वी हैव टू ट्रीट देयर हाइपरटेंशन एट डिस्चार्ज बैक टू कमिटी मिडवाइफ एडवाइस फॉर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक रीजेंट्स फॉर प्रोटीन ट्वाइस वीकली. ये भी नहीं है. एट डिस्चार्ज बैक टू कमिटी मिडवाइफ. तो वी हैव टू admit the patient. Blood pressure of 150 per 100 to 159 109 is considered moderate hypertension. Spot urine creatinine ratio of greater than 30 milligram per millimole is preeclampsia. इसका 32 है. ठीक है. Such patient they should be admitted antihypertensive treatment with labetalol. First line therapy should be commenced to maintain the systolic blood pressure below 150 mm of mercury and diastolic between 80 to 100 mm of mercury. इसका क्वेश्चन नंबर 44 है. A priming gravida BMI of 34 kg per meter square, 21 weeks of gestation with severe throbbing, headache and vomiting. ठीक है. And gives history of similar headaches in the past. ठीक है. पेशेंट अगर पहले हिस्ट्री दे रही थी that's okay. न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक है, स्वेयर हेडेक है एंड पेशेंट इज हाइपरटेंसिव एज वेल. ये दोनों हमारे पास एक वार्निंग साइंस हैं फॉर प्रीक्लेम्शिया एंड इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया. ऑन एग्जामिनेशन हर ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू बी नॉर्मल विद नो प्रोटीनूरिया. ठीक है. आपने रूल आउट किया प्रीक्लेम्शिया को. ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है एंड प्रोटीनूरिया भी नहीं है, डीप रेनल रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल है. Neurological review arranged and there are no localizing signs and except mild bilateral section of paresis. So most likely diagnosis का है benign idiopathic intracranial hypertension. ऐसा MCQ हमने पहले भी किया था. तो ये benign idiopathic intracranial hypertension है. इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. और ऑप्शंस क्यों नहीं है. डिप्रेशन, माइग्रेन हो सकता था बट न्यूरोलॉजिकल रिव्यू भी इसका ठीक है. बट यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल थोड़ा डेफिसिट बता रहा है कि माइल्ड बायलैटरल नर्व पैरेसिस है. और डिप्रेशन भी नहीं है. डिप्रेशन में तस्वीर थ्रोम्बिंग हेडेक और 6 नर्व पैरेसिस भी नहीं आएगा. एंड प्रीक्लेम्शिया विद नो ब्लड प्रेशर, नो प्रोटीनूरिया. स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन में हमें बताया है कि दे आर नो लोकलाइजिंग न्यूरोलॉजिकल साइंस. तो एक्सप्लेनेशन है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन. जो इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, फीमेल टू मेल रेशियो ऑफ 8:1. 8:1 है. इंसिडेंस इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज इज 0.9 per 100,000 बट इंक्रीजेस टू 19.3 to 100,000 obese women. Presentation usually severe thrombing, retrobulbar headache usually in the first half of pregnancy but can present in the 3rd trimester. Fundoscopy will reveal papilledema and neuroimaging essential to exclude other causes. Benign idiopathic intracranial hypertension is a diagnosis of exclusion, like you have to exclude venous thrombosis and any space occupying lesion. कुछ ना मिले एक्सक्लूजन में आपने इनको ये डायग्नोसिस बता रही हैं. तो एसबीएन सीजन में यही हाइपरटेंशन वाले एमसीक्यूज थे.